Yes, ma'am. Okay, let's start. Yeah. See, last lecture we had already started with chapter 4, Introduction to General and Health Insurance. We had done half of it. A bit general, a bit about general insurance is done. Introduction part of general insurance. I hope you remember we have done importance of general insurance, essential of general insurance contract. 4 points were there. I hope you remember 5 points. Sorry. I hope you remember all those five and categories of general insurance. This is how much we have done. Marine fire insurance, marine insurance, and miscellaneous. We have also done the in categories. There are 5 categories of general insurance. Insurance of property, in which your assets are included. Insurance of person means the life of a person is included. Insurance of interest means due to the future incomes, if any loss is there, that type of interest is included. Insurance type is included. Insurance of liability means third party liability, means due to third person, if any other, if any cause, if any loss is caused to a particular person, then he may go under insurance of liability. Special risk means, I already told you, it is example is written. See, insurance against loss of skills. So suppose due to accident somebody loses legs or hands, तो उनका जो आर्ट था, जो हाथ से बनाने की चीजें थी, वो अब नहीं बना पाएंगे वो. So that is why they lose their skills, right? So because of loss of skills, you are undergoing losses. Financially आपका लॉस हो गया, तो उसको सिक्योर करने के लिए स्पेशल रिस्क जैसे इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं. ओके. Now, next thing, which is according to our syllabus very important, is, yes, the role of general insurance in economic development. Means to develop our economy, what what role is performed by general insurance companies to develop the economy? See, first, insurance helps to protect capital employed in industry and economic activity by protecting assets. Like, suppose if you are a businessman, a very big businessman, if you have a very big industry, big companies, okay, you have plant and machineries, you have assets, you have fixed assets, okay. Now, because you have so much amount invested in the companies, now suppose there is an earthquake, तो वो सारी कंपनीज डूब मतलब चली जाएंगी, सारा खराब डैमेज, सब एसेट्स डैमेज हो जाएंगी अर्थक्वेक में. तो वो ना हो, इतना बड़ा नुकसान ना हो, इसीलिए इंश्योरेंस आपको हेल्प करता है. ठीक है ना. तो हमारी इकोनॉमी भी तो उससे डेवलप ही होती है. देखो, अब जैसे किसी की कंपनी, किसी की कंपनी में चोरी हो गई, किसी की कंपनी में आग लग गई, किसी की कंपनी में कुछ नुकसान हो गया, तो वो नुकसान की भरपाई हो जाने से क्या होता है, उनको कैश मिल जाती है, उनको फंड्स मिल जाते हैं. अब अगर फंड्स मिल जाएंगे का मतलब क्या होता है, I can restart my business. I can re-establish my business. I can reset up my business. I can purchase assets. I can appoint employees again. ठीक है. I can purchase land and building. तो मैं फिर से उन्हीं फंड्स में से अपना ऑफिस, अपनी कंपनी इस्टेब्लिश कर सकती हूँ. सो मेरा काम नहीं रुकेगा. काम नहीं रुकेगा मतलब एम्प्लॉयमेंट चलती रहेगी, है ना, प्रोडक्शन चलती रहेगी. सो इकोनॉमी के डेवलपमेंट में कोई हर्डल नहीं आते हैं. क्यों नहीं आता है? क्योंकि जनरल इंश्योरेंस आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. जनरल इंश्योरेंस रिमूव द वरी एंड द फियर. ये हम पहले भी कर चुके हैं इंपॉर्टेंस वाली पॉइंट में. आपका टेंशन, आपका डर सब खत्म करते हैं वो. क्यों? क्योंकि आपको टेंशन होता है, बिजनेस में रिस्क है, तो कैसे करूँ बिजनेस, कल को डूब गया तो कोई बात नहीं. डूब गया तो जनरल इंश्योरेंस से आपने इंश्योरेंस तो लिया ही है. अब आप ऐसे बोलो कि गाड़ी नहीं खरीदूं मैं, क्योंकि गाड़ी चोरी भी तो हो सकती है.
और फिर गाड़ी गुम भी तो हो सकती है, और गाड़ी डैमेज भी हो सकती है एक्सीडेंट से, तो हम गाड़ी खरीदे ही नहीं, चलो जाने दो, गाड़ी नहीं खरीदे। ऐसे थोड़ी बोलते हैं। खरीदते हैं गाड़ी और उसका इंश्योरेंस करा लेते हैं, सो दैट अगर कुछ होता भी है तो हमको उसका नुकसान न भरना पड़े। ठीक है। बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लेंड मनी टू द इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल अंडरटेकिंग्स। हाँ, लेकिन कोलेटरल सिक्योरिटीज के बेसिस पे, मतलब आपको कुछ तो गिरवी रखना पड़ेगा, तब जाके आपको बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मनी लेंड करते हैं, मतलब लोन देते हैं। मनी लेंडिंग मतलब लोन देना। तो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज भी आपको हेल्प करती हैं कि आप लोन ले सको इजीली, वो लोन आपको सैंक्शन करवा कर दे सकती है। बिफोर द एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्क, इंश्योरर मतलब कंपनी सर्वे करती है, पूरा अच्छे से जानकारी निकालती है कि इस पर्टिकुलर एसेट में कितना रिस्क पहले से इन्वॉल्व है। बहुत पुरानी बिल्डिंग है, बहुत पुरानी, तो उसके उसके टूट जाने के, उसके डैमेज हो जाने के चांसेस थोड़े ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो अभी अभी नई बिल्डिंग्स बनी है। तो लाइफ तो देखनी पड़ेगी, एज तो देखनी पड़ेगी, एज क्या है बिल्डिंग की। अगर 100 साल पुरानी बिल्डिंग है तो वाकई में पता पता ही चलेगा ना कि यहाँ से दीवार भी टूट सकती है, यहाँ से लीकेज का प्रॉब्लम हो सकता है ना, यहाँ से सीलिंग भी गिर सकती है कभी भी। तो मतलब आप, कंपनी क्या करती है, सर्वे करती है टू प्रिवेंट द लॉसेस, मतलब एटलीस्ट वो लॉसेस कम हो सके, या मतलब रिड्यूस हो सके। इट इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। अब मैंने आपको बताया था ना, बिजनेसमैन विल नॉट स्टॉप बिकॉज ऑफ द लॉसेस, कंपनी विल नॉट स्टॉप बिकॉज ऑफ द लॉसेस, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियों को फंड्स प्रोवाइड करती है, तो उससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आपका कंट्री में नेशनल वेल्थ बढ़ता है। ठीक है। इनकम डजंट स्टॉप ना, इसके लिए वो ये पॉइंट फिर से रिपीट की है। इंडियन जनरल इंश्योरेंस ऑपरेट इन मोर देन 30 कंट्रीज। आपको पता होगा हमारे इंडिया की जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इंश्योरर्स मतलब जो कंपनीज चलाते हैं, तो जो इंडिया की जनरल इंश्योरेंस कंपनीज है ना, मोर देन 30 कंट्रीज में चलती है थ्रू एजेंसीज। उनके एजेंट्स हैं अलग अलग कंट्रीज में, ब्रांचेस बनी हुई हैं अलग अलग कंट्रीज में, सब्सिडरीज बनी हुई हैं अलग अलग कंट्रीज में, विच इंक्रीजेस फॉरेन ट्रेड। और क्योंकि हमारे वहाँ पे ब्रांचेस हैं, सपोज यूएस में हमारा एक ब्रांच है इंडिया की जनरल इंश्योरेंस कंपनी का, तो फॉरेन के लोग भी तो, मतलब वहाँ पे फॉरेनर्स भी तो पॉलिसीज खरीदते होंगे ना, तो एक्चुअली तो वो कंपनी इंडिया की है, तो अगर कोई फॉरेनर पॉलिसी खरीद रहा है तो वो डॉलर्स में इन्वेस्ट करेगा ना पॉलिसी खरीदने के लिए, तो हमारी इंडिया में अल्टीमेटली फॉरेन रिजर्व्स क्रिएट होंगे ना, बढ़ेंगे ना डॉलर्स में, हमारे पास ज़्यादा फंड्स आएंगे। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या समझा रही हूँ एग्जाम्पल के जरिए? इज इट क्लियर? यस मैम। तो इसीलिए उसने पीछे लिखा है विच इंक्रीजेस फॉरेन ट्रेड, मतलब फॉरेन के साथ ट्रेड रिलेशंस बढ़ते हैं, क्योंकि आपने वहां पे ब्रांच लगा दी उनके देश में, तो अब उनके लिए खरीदना पॉलिसी इजी हो जाएगा। ठीक है, उनके ही बिल्कुल नज़दीक वाले एरिया में आपने लगा दिया ना अपनी ब्रांच, तो उनको इंडिया आके खरीदना नहीं पड़ेगा, वहीं पे ही बैठे बैठे वो पॉलिसी खरीद सकते हैं। तो फॉरेन रिजर्व्स हमारे बढ़ते हैं ना उससे, फॉरेन ट्रेड बढ़ता है, वो हमसे कुछ खरीद रहे हैं, हम इनको कुछ बेच रहे हैं, सो दैट इज नोन एज ट्रेड। जब हम बाहर के लोगों से बाय एंड सेल करते हैं ना, उसे कहते हैं फॉरेन ट्रेड। ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग। ठीक है, ट्रेडिंग में बहुत कुछ आ जाता है। तो फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है, फॉरेन मतलब जब हम बाहर के देशों में कुछ खरीदना बेचने की एक्टिविटी करते हैं ना, उसे कहते हैं फॉरेन ट्रेड। ठीक है। अब अब क्योंकि ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, इंश्योरेंस है, तो मतलब जो हर एग्रीकल्चरल, हमारी इंडिया ना एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है, मतलब आपको पता होगा 60 to 70% ऑफ द पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन। तो एग्रीकल्चर तो हमारा मेन ऑक्यूपेशन है इंडिया का। तो जनरल इंश्योरेंस में एग्रीकल्चरलिस्ट्स को, मतलब फार्मर्स को, एग्रीकल्चरलिस्ट्स मतलब फार्मर्स, फार्मर्स को अपना बिजनेस करने की जो अनसर्टेनिटी होती है ना, कि वेदर कैसा होगा, क्रॉप फेलियर तो नहीं हो जाएगा, लाइफ स्टॉक की वजह से कुछ नुकसान तो नहीं हो जाएगा, गाय भैंस जो वो पालते हैं ना, उन्हें लाइफ स्टॉक कहते हैं।
लाइफ स्टॉक मतलब एनिमल रियरिंग, एनिमल्स को वो पालना पड़ता है उनको, गाय भैंस बकरी, ठीक है। तो उनकी वजह से कुछ अगर नुकसान हो गया तो क्रॉप का, या सीजन की वजह से कुछ नुकसान हो गया, अचानक बारिश पड़ गई, देखो आप कभी कभी ऐसे होता है, सीजन भी नहीं होता है और बहुत तेज बारिश पड़ जाती है, तो क्रॉप का नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो ये नुकसान कौन उठाता है? कंपनीज उठाती हैं, और फार्मर्स को ये नुकसान बियर नहीं करना पड़ता। तो ये भी तो हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा ही है ना। क्लियर हुआ? मैम यस, टेल मी। मैम एफसी में ना इंडिया इंडिया का ना जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर का 33% दिखाया है, और अब भी 14% है, और उसमें 2% ही खाली एग्रीकल्चर है। तो ये इंडियन बेस्ड इकोनॉमी कैसे मैम? क्या क्या? मैंने नहीं समझा, फिर से पूछो। मतलब अभी ना इंडिया में ना 14% प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी हम्म, प्राइमरी सेक्टर का 14% है, हम्म, और उसमें 2% खाली एग्रीकल्चर का है। हम्म। तो ये इंडियन बेस्ड इकोनॉमी कैसे हुआ मैम? हाँ मतलब एग्रीकल्चर। हाँ बेसिकली देखा जाए ना तो पहले तो एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी था ना। ये तो अभी अभी रिसेंटली इंडस्ट्रीज और कंपनीज बढ़ने लगी है ना। ये तो अभी अभी रिसेंटली, अगर आप देखोगे 10 years बैक जाओ, ये तो रिसेंट ही हुआ ना जो अभी अभी कंपनीज और इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं। अगर आप पिछले 10 साल पहले जाओगे तो आप देखोगे हमारा इंडिया मेन एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी था, ठीक है। तो मतलब ये बेसिकली बात कर रहा है कि बहुत सारी अभी भी ऐसी पॉपुलेशन है जो एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन कर रही है, मतलब एग्रीकल्चर इज द ऑक्यूपेशन फॉर देम, मेन ऑक्यूपेशन। अब एग्रीकल्चर अगर उनका मेन ऑक्यूपेशन है, तो अगर नुकसान होना तो बहुत इजी होता है ना एग्रीकल्चर में, क्योंकि वेदर पे डिपेंड होता है एग्रीकल्चर। आई नो अभी भी बहुत सारी फैसिलिटीज, इरिगेशन फैसिलिटीज और टेक्नोलॉजिकल फैसिलिटीज आ गई हैं, बट स्टिल सब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि वो पुअर फैमिलीज को बिलोंग करते हैं। उनके पास इतने फंड्स नहीं होते हैं कि वो इतनी महंगी महंगी चीजें खरीद सके। तो बेसिकली आप देखोगे तो जो लोग इन्वॉल्व है ना, वो अभी भी अच्छा खासा नंबर है। आ रहा है समझ में? और मैम बोलो बोलो मैम बोलो। जनरल इंश्योरेंस में टेररिज्म अटैक भी आता है? मतलब जनरल, हाँ अगर वो क्लॉज इंक्लूड होगा ना तो बच्चा, उसी को ही तो कहते हैं राइडर्स। जो आप पूछ रहे हो ना इंक्लूड होगा कि नहीं होगा टेररिज्म अटैक, वो हमको ना मैम वो इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस होता है ना, राइडर? हाँ 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 हाँ, नहीं जनरल इंश्योरेंस में भी होता है ना। ओके। देखो मेरी बात सुनो, राइडर का मतलब होता है एड ऑन्स, एडिशनल बेनिफिट्स। यस मैम, ये इसका पता है एडिशनल, मेरे को, राइडर मतलब हाँ मैं खाली पूछ रहा हूँ, मतलब हाँ, तो जनरल इंश्योरेंस में होता है एडिशनल ना? बेनिफिट्स, हाँ हाँ, जनरल इंश्योरेंस में भी राइडर्स होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस में भी राइडर्स होते हैं। ये नो आपको मैम, कंपनी को बताना होगा। मैम हाँ वो पूछा मतलब जैसे आप टेररिज्म अटैक का भी आप ले सकते वो हाँ, ले इंश्योरेंस सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट। बिल। मैं वो ही पूरा कर रही हूँ बच्चा, पहले मुझे बोल तो लेने दो। मैं वही पूरा कर रही हूँ। तो जैसे आप बोल रहे हो टेररिज्म अटैक का, तो वो कंपनी को हमको पूछना पड़ता है कि ये क्लॉज आपकी पॉलिसी में इंक्लूड है कि नहीं है। हर पॉलिसी में इंक्लूड नहीं होता है, ये आपको चूज करना है कंपनी को बताकर। अगर आपको ऐसा चाहिए ना, तो कंपनी को आपको बताना पड़ेगा कि मेरा ये क्लॉज है, मेरी ये शर्त है कि मुझे ये चाहिए। तो कंपनी आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज करके ये कॉस्ट, ये जो क्लॉज है ना, वो इंक्लूड करके देती है। आया समझ में? यस मैम। हाँ मैं वही बता रही थी, ठीक है। थैंक यू मैम। हाँ जी। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा जनरल इंश्योरेंस, ठीक है ना। अभी तक हमने जो भी किया वो क्या था? जनरल इंश्योरेंस। अभी हम आगे कर रहे हैं इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। मतलब अभी से जो भी हम पॉइंट्स पढ़ेंगे ना, वो हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड होगी। अब आपको पता है हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है? क्या होता है हेल्थ इंश्योरेंस? क्या होता है जब हमारी कभी हेल्थ खराब हो जाए, ठीक है, या फिर हमको मेडिकल ट्रीटमेंट के अंडर जाना पड़े, तो मेडिकल खर्चे उठाने पड़ते हैं ना। हम बीमार हो जाएं तो डॉक्टर्स के पास विजिट करना पड़ता है, तो डॉक्टर को फीस भरनी पड़ती है। या मेडिकल ऑपरेशन, कोई ऑपरेशन के अंडर जाना पड़ा हमको, ठीक है, तो उस ऑपरेशन से मेरा मेडिकल ट्रीटमेंट, जो मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है उस ऑपरेशन की वजह से मेरा खर्चा हो गया, तो वो खर्चे को मैं नहीं भर सकती ना एवरी टाइम, मेरा ये खर्चा मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। तो कंपनी क्या करती है, आपको हेल्प करती है इसमें कि आप थोड़ा थोड़ा प्रीमियम भरो, बहुत छोटा छोटा अमाउंट होता है प्रीमियम का, ठीक है। मतलब आप
वो तो पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि आप कितनी महंगी पॉलिसी खरीद रहे हो, ठीक है, वो तो पॉलिसी पे डिपेंड करेगा ना। लेकिन जो मैं खरीद रही हूँ ना वो मेडिकल से रिलेटेड होगा, मतलब हेल्थ इज रिलेटेड टू, योर हेल्थ इज रिलेटेड टू मेडिक्लेम। मतलब आप अगर हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहे हो ना, मतलब इसका मतलब क्या होता है, मेडिक्लेम पॉलिसी खरीदते हो। मेडिक्लेम, मेडी मतलब मेडिकल से रिलेटेड, आपका कोई भी ट्रीटमेंट हुआ, कोई भी कुछ भी खर्चा हुआ आपका, ठीक है, मेडिकल से रिलेटेड मतलब छोटे मोटे खर्चे जो ऑपरेशन के खर्चे होते हैं एक्सेट्रा, विजिट करना डॉक्टर को, फीस भरना, अलग अलग पॉलिसीज में अलग अलग चीजें होती हैं। अब हर पॉलिसी में आपको देखो बहुत सारी पॉलिसीज होती है, सिर्फ और सिर्फ अभी जैसे आई कैटरैक्ट ऑपरेशन करवाया, और उसके बाद अगर कोई किडनी का ऑपरेशन हुआ, अगर कोई हार्ट का ऑपरेशन हुआ, ये क्लॉजेस होते हैं, ये एड ऑन्स होते हैं। अभी आपको 2-3 चीजें और एड ऑन करवानी है कि फ्यूचर में कभी मुझे बैक का ऑपरेशन कराना पड़ा, तो कभी किसी चीज का ऑपरेशन हो गया, किसी बॉडी पार्ट का ऑपरेशन हो गया, तो वो भी चीजें इंक्लूड करानी पड़ती हैं, तो वो बोलना पड़ता है कंपनी को। समझ में आ रहा है? तो उसको बोलते हैं मेडिक्लेम पॉलिसी। अब जब हमारा कुछ खर्चा होगा फ्यूचर में, कोई कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से आई हैड टू अंडरगो मेडिकल ऑपरेशन, ठीक है, तो उसमें जो मेरा मेडिकल ऑपरेशन की वजह से जितना भी खर्चा होता है ना, वो कंपनी प्रपोर्शनेट अमाउंट भर के देती है। पूरा तो नहीं मिलता है, ऑफ कोर्स पूरा तो कंपनी आपको देती नहीं है, बहुत हार्डली किसी ऐसे केस में होता है जो पूरा का पूरा अमाउंट भर के मिलता है। सो इट इज़ लाइक 80% आपको अच्छा खासा अमाउंट भर के मिलता है। कोई कंपनी आपको 70% देती है, कोई 80, कोई 85, मतलब इट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी। So health insurance is provided mainly in the form of mediclaim policy। देखो लिखा हुआ है, तो किस फॉर्म में आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है? मेडिक्लेम पॉलिसी के फॉर्म में मिलता है। किसको मिलता है? इंडिविजुअल्स को भी मिल सकता है, मतलब सिर्फ मैं अकेले के लिए भी ले सकती हूँ, ग्रुप के लिए भी ले सकती हूँ, मैं, मेरी मॉम, मेरे डैड, ठीक है, या मैं, मेरा हस्बैंड, मेरा चिल्ड्रन, मेरे चिल्ड्रन। तो ऐसे करके हम ग्रुप के लिए भी ले सकते हैं। एसोसिएशन, एग्जाम्पल देती हूँ, एसोसिएशन का मतलब एग्जाम्पल ले लो, एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन। एक मिनट, एसोसिएशन और कॉर्पोरेट बॉडीज मतलब एक ही बात होती है, और वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं इसका एग्जाम्पल देती हूँ आपको। हाँ, अभी आप बताइए क्या बोल रहे थे? मैं आप, ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अभी जैसे एक कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एक कंपनी है, उसमें ना 10 एम्प्लॉयज काम करते हैं, 12 एम्प्लॉयज काम करते हैं। बड़ी कंपनी है तो 40 एम्प्लॉयज काम करते हैं, और बड़ी कंपनी है तो 400 एम्प्लॉयज काम करते हैं, और बड़ी कंपनी है आउटसाइड इंडिया में भी ब्रांचेस हैं, तो बहुत बड़े नंबर पे हमारे एम्प्लॉयज हैं, लाखों में एम्प्लॉयज काम करते हैं, जैसे टाटा, रिलायंस कंपनीज, ठीक है। तो जितने भी मेरे एम्प्लॉयज काम करते हैं ना, उन सबके लिए मैंने मेडिक्लेम पॉलिसी खरीदी। मतलब कभी भी ड्यूरिंग, या चलो बहुत सारी कंपनीज है ना ऐसा ऑप्शन भी देती है, ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स आपको कुछ हो गया तो ये मेडिक्लेम पॉलिसी काम आएगी। लेकिन बहुत सारी कंपनीज अच्छी भी होती हैं, वो कहती हैं 24 घंटे में कभी भी कुछ भी हो गया ना, ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स नहीं भी हुआ तो भी, कभी भी कुछ भी हुआ ना, तो ये मेडिक्लेम पॉलिसी काम आएगी। लेकिन शर्त ये होती है, ये जो कंपनीज जो करवाते हैं ना मेडिक्लेम पॉलिसी, उनके उनके ना हॉस्पिटल्स के साथ है ना लिंकेज होती है, बाइंड अप किया होता है, ठीक है। सो दे आर ऑलरेडी कनेक्टेड टू सम हॉस्पिटल्स, और उन्हीं हॉस्पिटल्स में से आपको मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है, तब जाके आपका ये मेडिक्लेम पॉलिसी काम आएगा, नहीं तो नहीं। सपोज अभी टाटा कंपनी ने एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस कराया, और इंश्योरेंस बता करवा के पॉलिसी डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ है कौन कौन से हॉस्पिटल्स में ये एप्लीकेबल होगा। सपोज 4-5 हॉस्पिटल्स का नाम दे दिया, ठीक है, और उन 4-5 हॉस्पिटल्स में ही आपको ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, उसके अलावा आप नहीं करवा सकते। सो दिस इज नोन एज एसोसिएशन और कॉर्पोरेट बॉडीज के जरिए जब इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है, हेल्थ इंश्योरेंस, ओके, ठीक है। ये अभी अभी इंडिया में बहुत फेमस हुआ है, अभी कोरोना वायरस की वजह से तो बहुत सारी आपने एडवर्टाइजमेंट्स भी देखी होंगी कि हेल्थ इंश्योरेंस तो करवानी चाहिए, अब तो करा दो मेडिकल इंश्योरेंस, ऐसा बोलता है वो। अब तो बहुत ज़्यादा हो गया ये, जैसे जैसे लोगों ने देखा कि बीमार होते हैं और ज़्यादा ऑपरेशंस करवाने पड़ते हैं और ये खर्चे बहुत हो जाते हैं, तो अब तो ज़्यादा ही चल रहा है। पहले इंडिया में ये ज़्यादा फेमस नहीं था। कुछ इंडिया में जो पॉलिसीज हैं जो फेमस है, बहुत 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 फेमस है, जैसे भविष्य आरोग्य बीमा, है ना, जन आरोग्य बीमा, है ना,
तो ये कुछ पॉलिसीज हैं जो बहुत बहुत फेमस है, गवर्नमेंट ऐसे निकालती रहती है ये बीमा पॉलिसीज। ठीक है, बीमा मतलब इंश्योरेंस, इंश्योरेंस को ना हिंदी में कहते हैं बीमा। ठीक है, जन, जन मीन्स पब्लिक, आरोग्य उनके बेनिफिट के लिए, सो इट्स अ बीमा फॉर वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। ओके, एनीवेज, nowadays hospitals, nursing homes and medical practitioners मतलब doctors are increasingly seeking to tie up with the insurers। मैंने वही बताया, बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज क्या करते हैं, हॉस्पिटल्स के साथ, नर्सिंग होम्स के साथ, डॉक्टर्स के साथ टाई अप करते हैं टू ऑफर देयर सर्विसेज अंडर हेल्थ एंड मेडिकल इंश्योरेंस प्लान्स। ठीक है, समझ में आया? जो मैंने पहले पॉइंट बोली थी ना, बस वही लिखा हुआ। अब हेल्थ इंश्योरेंस में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, मतलब ये हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, इट इज अ पॉलिसी, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड इंडिविजुअल और अ ग्रुप। ठीक है, इन विच कंपनी, इंश्योरर मतलब कंपनी, एग्रीज टू प्रोवाइड स्पेसिफाइड, मतलब कुछ कुछ, सब नहीं मिलती है इसमें, कुछ कुछ जो आपने इंक्लूड करवाए हैं, प्रोवाइड स्पेसिफाइड हेल्थ इंश्योरेंस एट एन एग्रीड प्रीमियम। हम आपको इंश्योरेंस देंगे लेकिन आपको इसके अगेंस्ट में प्रीमियम भरना पड़ेगा। अच्छा, प्रीमियम कैसे हो सकता है, आपकी मर्जी, आपको लमसम भरना है वो भी चलेगा, आपको इंस्टॉलमेंट भरना है वो भी चलेगा। कैन बी पेड एज लमसम और इन द इंस्टॉलमेंट्स। अच्छा, तो हेल्थ इंश्योरेंस में क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, लेट अस हैव अ क्विक रिव्यू ऑफ दिस। वन इज रिलेटेड टू रीइंबर्समेंट ऑफ द मेडिकल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू स्पेसिफिक डिजीजेस। अब मैंने पहले ही बताया, स्पेसिफिक मतलब जो जो हमने बोली है या जो जो पॉलिसी में इंक्लूड है ना, वो ही डिजीजेस इंक्लूड होंगी, सारी नहीं, सारी नहीं होती हैं। एक ही पॉलिसी में आपको सब कुछ नहीं मिलता है। आपको अगर सब कुछ चाहिए तो दो दो तीन तीन चार चार पॉलिसीज खरीद के रखो ना, ऐसे होती है। आपने पॉलिसी खरीदी क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी, तो क्रिटिकल इलनेस का मतलब ये होता है जैसे बड़ी बड़ी बीमारियां, हार्ट अटैक या फिर ये स्ट्रोक आ जाना या फिर कैंसर हो जाना, तो खरीदाई उसका क्रिटिकल इलनेस का, तो बीमारियां भी वही कवर होंगी ना। ठीक है, छोटे मोटे ऑपरेशंस का थोड़ी कवरेज आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको दूसरी पॉलिसी खरीदनी पड़ेगी। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? Yes, am I clear to everybody? Yes, ma'am. Yeah. So one is related to reimbursement. अब reimbursement का मतलब क्या होता है? Reimbursement, reimbursement, भर के मिलना, फिर से पैसा भर के मिलना। इसका मतलब तो ये एक ही हो सकता है कि पहले मैंने अपने जेब से खर्चा किया और उसके बाद मुझे कंपनी फिर से भर के देती है। अब समझ में आया रीइंबर्समेंट का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल ले लो, मेरा ऑपरेशन हुआ किसी, जैसे कैटरेक्ट, आई कैटरेक्ट ऑपरेशन, सपोज एग्जाम्पल ले लो, ठीक है ना। अब मेरा ऑपरेशन हुआ, मैंने खर्चा किया कितना, 2 लाख रुपए का खर्चा, किसी बहुत अच्छे वेल नोन हॉस्पिटल से मैंने करवाया था, तो खर्चा भी ज्यादा हो गया। कितना खर्चा हुआ, 2 लाख रुपए का। ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको प्योरली। तो 2 लाख रुपए पहले मैं अपने जेब से खर्चा करती हूँ, उसके बाद सारे प्रूफ्स के साथ कि मैंने इतना खर्चा किया, ये हॉस्पिटल है, ये डॉक्टर है, उसका ये लेटर है, और सारे सब कुछ मैंने एविडेंस कलेक्ट किए। एविडेंस कलेक्ट करके मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास लेकर जाऊंगी और मैं कहूंगी कि मेरी पॉलिसी में आई कैटरेक्ट ऑपरेशन इंक्लूड है और ये सारे प्रूफ है, ये मेडिकल रिपोर्ट है, ये डॉक्टर की रिपोर्ट है, ये मेरी मेडिसिन ऐसी इतनी इतनी मिल रही है, इतना इतना कॉस्ट मेरा हो गया मेडिसिन को इंक्लूड करके, तो टोटल 2 लाख रुपए मैंने खर्चा किया। तो कंपनी क्या करती है, सारे प्रूफ्स को स्क्रूटिनाई करती है, वेरीफाई करेगी, वेरीफाई करने के बाद क्या करती है, आपको रीइम्बर्स करती है। रीइम्बर्स, इम्बर्स का मतलब होता है पेमेंट करना, आपको भर के देना, बोलते हैं ना, आप पहले खर्चा तो करो फिर भर के दूंगी मैं, ऐसे बोलते हैं ना हम, बस वही चीज है। रीइम्बर्समेंट मतलब कंपनी आपको भर के देती है पैसा, जो आपने खर्चा किया होता है ना, वो आपको रीइम्बर्स करती है। क्लियर हुआ रीइम्बर्समेंट का मतलब? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो वन इज रिलेटेड टू द रीइंबर्समेंट ऑफ द मेडिकल एक्सपेंसेस, जो हम मेडिकल का खर्चा करते हैं रिलेटेड टू स्पेसिफिक डिजीजेस।
एंड सेकंड क्या है, इज रिलेटेड टू हॉस्पिटलाइजेशन। अब देखो बहुत सारे ऑपरेशन ऐसे होते हैं जिसमें मुझे हॉस्पिटल में स्टे करना पड़ता है, तो स्टे करती हूँ तो रूम खरीदना पड़ता है, हॉस्पिटल का बेड खरीदना पड़ता है ना। अभी जैसे कोरोना वायरस के टाइम पे पेशेंट्स को बेड खरीदने पड़ रहे थे ना, तो जितना प्राइवेट हॉस्पिटल प्रिफर करोगे तो खर्चा भी ज्यादा आएगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्रिफर करोगे तो खर्चा कम आएगा। तो बेड खरीदना पड़ेगा ना, उसके लिए आपको रूम खरीदना पड़ेगा। किसी को सोफेस्टिकेटेड रूम चाहिए होते हैं, ग्रुप में नहीं चलेगा, मेरे को अकेले का चाहिए। तो जितना आपका ज्यादा वो आपकी जो मतलब क्या बोलते हैं लाइक्स एंड डिसलाइक्स होंगे वो हॉस्पिटलाइजेशन के रिगार्ड्स में, उतना खर्चा आपका ज्यादा होगा। ठीक है, रूम अलग से खरीदोगे तो खर्चा भी ज्यादा होगा, एयर कंडीशन रूम खरीदोगे तो खर्चा भी ज्यादा होगा। तो कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो हॉस्पिटलाइजेशन के भी होते हैं, वहाँ पे रहने के खर्चे, तो वो भी आपको भर के मिल सकता है। लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा इतने टाइम आपने हॉस्पिटल में स्टे किया था, इतने दिनों का मुझे मुझे स्टे करना पड़ा था क्योंकि ऑपरेशन 2-3 दिन का था, या फिर ऑपरेशन के बाद भी मुझे स्टे करना पड़ा बिकॉज वो रिकवर करने के लिए या स्टिचेस ओपन करने के लिए डॉक्टर्स आस्क्ड मी टू स्टे देयर। ओके, तो मैं एग्जांपल दे रही हूँ जैसे आप समझ सको। ग्लोबली द हेल्थ कवर्स ऑपरेट इन 2 ways। मतलब ये हेल्थ कवर मतलब हेल्थ कवर का मतलब होता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस आपको क्या देता है, रिस्क कवर, मतलब आपके रिस्क में से आपको निकाल के आपको प्रोटेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं कवर। तो हेल्थ कवर मतलब हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। अब ये 2 ways से हो सकते हैं। 2 ways मतलब दो तरीकों से हो सकते हैं। अच्छा, कौन सा है पहला तरीका, क्या है, कैशलेस। कैशलेस मतलब आपको कोई कैश नहीं भरनी है, सीधा आपकी इंश्योरेंस कंपनी कैश भर देगी। कैसे मैम, कैसे भरती है कंपनी, मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने इंट्रोडक्शन के टाइम पे बताया था कि कुछ इंश्योरेंस कंपनीज है ना हॉस्पिटल्स के साथ लिंक टाई अप कर देती है, टाई अप। अब सपोज मैंने पॉलिसी खरीदी क्रिटिकल इलनेस, उसमें कोई एक बीमारी इंक्लूड है और जो मुझे हो भी गई और मुझे ऑपरेशन कराना पड़ा, ठीक है। अच्छा, तो ऑपरेशन कराना पड़ा तो कौन से हॉस्पिटल से करवाना पड़ा, जो उन्होंने बोली है पॉलिसी में लिखी हुई है, बस उसी हॉस्पिटल्स को मैंने प्रिफर करना है, उसमें से कोई एक। समझो 10 हॉस्पिटल्स है, बहुत अच्छी इंश्योरेंस कंपनी है, बहुत अच्छी, तो उन्होंने जो लिस्ट दी हुई होती है ना वो ज्यादा होती है, 50 हॉस्पिटल्स भी वो देते हैं आपको। आप देखो, कभी पढ़ो किसी इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में, कैशलेस के बारे में, देखो कोई कोई कंपनीज आपको 50 हॉस्पिटल्स का ऑप्शंस भी देते हैं, कोई कंपनी सिर्फ 10, कोई कंपनी 20 हॉस्पिटल्स का ऑप्शन देते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी, वो तो कंपनी का टाई अप, जो उनका म्यूचुअल एग्रीमेंट बैठता है उतने लोगों के साथ वो एग्रीमेंट बनाते हैं हॉस्पिटल्स के साथ। अब समझो मुझे वो क्रिटिकल इलनेस हो गई, उनमें से कोई एक जो पॉलिसी में लिखी हुई है और मैंने ऑपरेशन करा, कौन से हॉस्पिटल से, जो 20 की लिस्ट दी हुई थी ना उसमें से एक हॉस्पिटल मैंने सिलेक्ट किया, रिसर्च किया मैंने हॉस्पिटल कौन सा अच्छा है 20 में से, सबसे बढ़िया था 5th नंबर, मैं 5th नंबर वाले हॉस्पिटल में गई, ऑपरेशन करवा लिया। अब मुझे कुछ भी नहीं भरना, कुछ भी नहीं, कैशलेस। हाँ वो तो कंपनी पे डिपेंड करता है ना, कुछ भी नहीं भरना मतलब कैशलेस का मतलब ये नहीं होता कुछ भी नहीं भरना। अगर ऑपरेशन हुआ 5 लाख रुपए का खर्चा हुआ, तो 5 लाख में से हार्डली मुझे कुछ भरना होता है, कुछ समझो 40-50 हजार, वो कंपनी पे डिपेंड होता है। कंपनी आपको कितना भर के दे रही है, 80%, 85%, 90%, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड होता है, पॉलिसी के ऊपर डिपेंड होता है, देख के पॉलिसी लेने का। ऐसे नहीं कोई भी पॉलिसी उठा के ले लेने का, नहीं, टर्म्स एंड कंडीशंस रीड करने पड़ते हैं। तो वो देख कर लेने का कि कंपनी अगर मेरा फ्यूचर में ऑपरेशन हुआ तो कंपनी कितना भरेगी और मुझे कितना भरना पड़ेगा। सो जो मुझे भरना है ना वो बहुत छोटा अमाउंट होता है, कंपनी बड़ा अमाउंट भरती है। सो इसीलिए उसको बोलते हैं कैशलेस, मतलब मुझे नहीं भरने का, मुझे अपने जेब से कुछ नहीं भरना है और कंपनी खुद ही भर लेगी, इसीलिए इसको कहते हैं कैशलेस। ठीक है, मतलब मुझे कैश अपनी निकालनी नहीं है। थोड़ी बहुत तो जो थोड़ा बहुत तो एक्सपेंसेस करने ही पड़ते हैं वो करनी पड़ेंगी, बाकी मेजर अमाउंट तो कंपनी सीधा हॉस्पिटल को पेमेंट कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्या, एक और तरीका होता है सेकंड जो मैंने अभी अभी बताया, रीएम्बर्सेबल। अभी अभी तो बताया कैश आपको पहले भरनी है, जैसे मैंने आई कैटरैक्ट का एग्जाम्पल बताया, वो मोतियाबिंद उसको हिंदी में बोलते हैं, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, ठीक है। तो अगर अगर मैं
अब मैंने एग्जाम्पल आपको बताया आई कैटरिक का, मैंने ऑपरेशन कराया, पहले मैंने कैश भरी, उसके बाद मैं कंपनी के पास गई और सारा कैश वापस उनसे ले लिया, उसे कहते हैं कैश रीइम्बर्सेबल वंस। मतलब दूसरा पैटर्न कौन सा होता है कि पहले आप खर्चा करो फिर कंपनी आपको भर के देगी, और पहला क्या होता है आपको भरना ही नहीं है, सीधा कंपनी हॉस्पिटल को पेमेंट करेगी। इज इट नाउ क्लियर? इज इट नाउ क्लियर? यस नो कुछ तो बोलो। Yes, ma'am. यस चलो, अभी हम आज के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स तक करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। इज दैट ओके? कैरेक्टरिस्टिक्स कर ले सिर्फ, क्योंकि अभी इंट्रोडक्शन किया ना तो आपको भी लिंक बैठेगा ना, कैरेक्टरिस्टिक्स जल्दी हो जाएंगे फिर, क्योंकि आपको इंट्रोडक्शन समझ गया। ठीक है, इंट्रोडक्शन में से ही कैरेक्टरिस्टिक्स बनते हैं। मतलब हेल्थ इंश्योरेंस क्या है तो उसके फीचर्स भी तो हेल्थ इंश्योरेंस क्या है करके जो समझ लिया तो फीचर्स भी तो हम उसमें से ही निकालेंगे ना, तो अभी आपको ईजी हो जाएगा समझना, इसलिए बोल रही हूँ अभी कर लेते हैं। अब देखो, हेल्थ इंश्योरेंस ऑल्सो नोन एज मेडिक्लेम ऑफर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट, आपको हेल्थ इंश्योरेंस क्या देता है? मेडिक्लेम देता है, और मेडिक्लेम क्या करता है? आपको प्रोटेक्शन देता है। किससे? मेडिकल इमरजेंसी, अनएक्सपेक्टेड। कोई सोचता थोड़ी है कि फ्यूचर में मेरे को मेडिकल ऑपरेशन कराना पड़ेगा, कोई सोचता थोड़ी है, अनएक्सपेक्टेड होता है। अनफोर्सीन मतलब मुझे नहीं, मुझे फ्यूचर दिख नहीं रहा है, फोर्सीन मतलब मैं फ्यूचर देख सकती हूँ, पर मुझे थोड़ी दिखता है, फ्यूचर नहीं दिखता है, कभी एक मुझे करवाना पड़ेगा, तो शायद कराना पड़े, तो इसीलिए मैंने पहले से ही प्रोटेक्शन ले ली। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड मेडिकल इमरजेंसी से हमको ये प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छा, हेल्थ इंश्योरेंस क्या करता है? आपकी कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट, महंगी महंगी ट्रीटमेंट्स, मेडिकल सर्विसेज, हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस का ध्यान रखता है कि आपको नहीं भरना पड़ेगा, हम भरेंगे, आप चिंता ना करें। ठीक है, नेक्स्ट, मेडिसिन भी जब आप खरीदने जाते हैं ना वो भी आपको रीइंबर्समेंट होकर मिलता है, लेकिन पॉलिसी में इंक्लूड होना चाहिए, बार बार मैं बोल रही हूँ, तो पॉलिसी सोच समझ के खरीदने का कि क्या खरीद रहे हो। हेल्थ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में भी रिन्यूएबल, रिन्यू करवा सकते हो, हाँ बिल्कुल रिन्यू करा सकते हैं। देखो जनरल इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस का टाइप है जिसे हम जरूर और जरूर रिन्यू करवा सकते हैं, चाहे फिर वो जनरल इंश्योरेंस में हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे वो मेराइन इंश्योरेंस हो, बी इट होम इंश्योरेंस, लेट इट बी क्या बोलते हैं उसको, मेराइन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, कोई भी इंश्योरेंस होने दो ना, वो रिन्यूएबल होते हैं। ठीक है, अच्छा इसका टैक्स बेनिफिट मिलता है, हाँ बिल्कुल मिलता है। अगर आपका पॉलिसी में पढ़ना पड़ता है, हाँ पॉलिसी में पढ़ा करो, आगे जब कोई पॉलिसी खरीदोगे ना तो उसमें सेक्शन 80D के बारे में लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर सेक्शन 80D के बारे में लिखा है ना मतलब आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे, यानी कि मतलब क्या हुआ इसका मैम? टैक्स बेनिफिट का मतलब जब आप इनकम टैक्स भरते हो ना गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट पूछती है आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस खरीदा है जिसमें 80D इंक्लूड है। 80D, सेक्शन 80D ये बात करता है हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में। तो आप बोलते हो हाँ मैंने खरीदा है। अच्छा खरीदा है, आप क्या नॉर्मल सिटीजन, मतलब आपकी एज अगर सीनियर 60 से कम है तो आपको बेनिफिट मिलता है 25,000, और अगर आप सीनियर सिटीजन हो गए हो और आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी है और सेक्शन डी इंक्लूड है उसमें, और आप इनकम टैक्स भर रहे हो, तो आपका 50,000 आपको बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट मतलब टैक्स कम हो जाती है, कितनी? 50,000 अगर सीनियर सिटीजन है तो, और अगर नॉर्मल मतलब सीनियर सिटीजन नहीं है तो 25,000 का बेनिफिट आपको मिलता है। टैक्स कम हो जाती है, कितनी? 25,000। इसके लिए इसको बोलते हैं टैक्स बेनिफिट। और ये जो 15 और 20 है ना, ये मैंने बच्चों को कट करवाया था, ये पुराने अमाउंट है, पुराने 4-5 साल पुराने अमाउंट। अब 15 से 25 हो गया, गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया टैक्स बेनिफिट, और 20 सीनियर सिटीजन के लिए पहले 20 था, अब वो 50 हो गया। अभी ना हम नेक्स्ट सेमेस्टर में मैं आपको करवाने वाली हूँ डायरेक्ट टैक्स, हमको सब्जेक्ट है डायरेक्ट टैक्स। तो जब हम नेक्स्ट सेमेस्टर में आएंगे, मतलब सॉरी नेक्स्ट सेमेस्टर में नहीं, हाँ बराबर नेक्स्ट सेमेस्टर सेम 3 में है, तो तब मैं आपको करवाऊंगी ना, ये आएंगे सारे सेक्शंस 80D, और लाइफ इंश्योरेंस में हमने किया था 80C, तभी उस सब्जेक्ट में आएंगे। ठीक है, टैक्स में ही करवाती हूँ तो वो मैं आपको बताऊंगी, पर डिटेल में बताऊंगी। ओके, हेल्थ इंश्योरेंस में भी प्रोवाइडेड थ्रू अ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड सोशल प्रोग्राम।
और प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी। हेल्थ इंश्योरेंस में बढ़िया बात क्या है कि दोनों की तरफ से हमको मिल सकता है। आपको गवर्नमेंट की स्कीम चाहिए तो गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स में चाहिए, और अगर प्राइवेट कंपनी की स्कीम्स चाहिए तो प्राइवेट कंपनीज भी हैं बहुत सारी। ठीक है। इट मे बी परचेज्ड ऑन ग्रुप बेसिस। वाओ, कितना अच्छा है, ग्रुप बेसिस पे भी खरीद सकते हैं, एक ही पॉलिसी सबके लिए। जैसे मैन्युफैक्चरर ने खरीद लिया अपने वर्कर्स के लिए, एम्प्लॉयर ने खरीद लिया अपने एम्प्लॉयज के लिए, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया, कंपनी के ओनर ने खरीद लिया अपने एम्प्लॉयज के लिए, तो ग्रुप में भी, या फिर फादर ने खरीद लिया अपनी पूरी फैमिली के लिए। ठीक है। The type of health insurance policy, amount of the premium, and claim details are specified in the beginning. ये तो बहुत क्लियर कट पता होना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए, पॉलिसी में क्या क्या है, टाइप क्या है पॉलिसी का, क्या क्या इंक्लूड है, क्या क्या इंक्लूड नहीं है, प्रीमियम कितना भरना पड़ेगा कंपनी को, और क्लेम सेटल कंपनी कैसे करती है, कि अगर मेरा नुकसान हो गया तो कंपनी कैसा प्ले क्लेम कितना सेटल करेगी, 80-90% कैसे सेटल करेगी, कैश में की अकाउंट होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए। आजकल तो आपको पता ही है बैंक अकाउंट के थ्रू ही होता है, कैश नहीं देती है आपको। अब ये रिसेंटली डिजिटलाइजेशन के बाद हुआ है। ठीक है। सो ये सब आपको बातें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, क्रिटिकल इलनेस राइडर। अभी देखो किसने पूछा था ये ऑप्शन, शायद निशांत ने पूछा था ना। देखो राइडर अवेलेबल होता है ना, तो क्रिटिकल इलनेस राइडर ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं। मतलब आपको लगता है कि इसमें तो एक दो डिजीजेस, एक दो इलनेसेस कवर्ड है, मुझे और एक दो कवर करवानी है। डायबिटीज इंक्लूड तो है ही नहीं इस पॉलिसी में, मुझे तो डायबिटीज भी इंक्लूड करवानी है, तो करवा दो। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम भरना पड़ता है। जितने एड ऑन्स करेंगे, जितने एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आप लोगे, कंपनी फ्री में नहीं देती है, कंपनी आपसे थोड़ा प्रीमियम ज्यादा लेती है। राइडर्स का ऑप्शन ही अच्छा होता है, क्योंकि क्योंकि राइडर मतलब आपने एक के साथ दो चीजें जोड़ दी तो सस्ते में पड़ता है। स्कीम हम बोलते हैं ना, स्कीम में हमको सस्ता पड़ा। समझ में आया, क्लियर हुआ? Yes, ma'am. या सो वी हैड डन अप टू कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, बेनिफिट्स हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। हिस्ट्री सिर्फ हिस्ट्री मतलब ये पहले का जो कभी से शुरू हुआ, कौन सी कंपनी कब ओपन हुई, उसके बाद हमारे इंडिया में कब से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई इंश्योरेंस कंपनी की, वो आप सिर्फ रीड, मतलब वो रीडिंग पर्पस के लिए है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बेनिफिट्स के बाद। ठीक है, ये टाइप्स हैं। उसके बाद है आपके हमारे इंडिया में कौन कौन से प्रोग्राम्स चलते हैं। प्रोग्राम्स मतलब स्कीम्स हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड। कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स हैं तो कुछ मार्केट बेस्ड। मार्केट बेस्ड का मतलब होता है प्राइवेट। ठीक है, ये ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, इनका आपने सिर्फ हेडिंग भी पढ़ लिया ना तो भी बहुत हो गया। हाँ, डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे पूरा अच्छे से, बेनिफिट्स अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स है हमारे पास ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, और उसके बाद है डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिस्क प्रीमियम। दोनों अलग अलग होते हैं, बताऊंगी मैं लेक्चर में जब हम नेक्स्ट कवर करेंगे। और उसके बाद है IRDA रेगुलेशंस। IRDA मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। उन्होंने क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं एक इंश्योरेंस कंपनी के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के लिए। ठीक है, ये जस्ट रीडिंग के लिए, हेल्थ इंश्योरेंस इन इंडिया, ये सिर्फ रीडिंग पर्पस के लिए होता है। और फिर कंपैरिजन बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, डिस्टिंग्विशेस हम नहीं कवर करते हैं, आपको खुद को करने होते हैं। डिस्टिंग्विशेस यू हैव टू डू इट, बिकॉज पूरा चैप्टर लाइफ इंश्योरेंस का मैंने करवाया, अब हम पूरा चैप्टर हेल्थ इंश्योरेंस का कर रहे हैं, तो डिस्टिंग्विश आप करते हो, ये पूरा चैप्टर हम करवा रहे हैं, डिस्टिंग्विश आपने करना है, खुद से रीड करना है। कुछ डाउट होगा तो मैं या फिर लेक्चर में ही फटाफट 5 मिनट में बता दूंगी कि क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, मतलब मुझे लग रहा है 2 लेक्चर्स और लगेंगे क्योंकि थोड़ा लेंदी है, और यहाँ पे आपका चैप्टर पूरा। ठीक है, डिस्टिंग्विश के बाद पूरा हो गया। सैम्पल फॉर्म्स ये ऐसे ही रेफर करने के लिए दिए होते हैं, और जहाँ पे सैम्पल फॉर्म आ गया मतलब चैप्टर फिनिश। सो वी हैव 3 to 4 more topics to cover, I mean 3-4 more contents, जैसे बेनिफिट्स, टाइप्स,
डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, और फिर डिस्टिंग्विश। तो ये हम मेरे ख्याल से 2 लेक्चर्स और लगेंगे, फिर ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। इज दैट ओके नाउ? अभी तक कुछ डाउट है? Okay, ma'am. No, ma'am. मैम हाँ जी, बोलिए। No, ma'am. मैम यस आपके पास कोई आइडिया है जो जनरल मतलब इंश्योरेंस में कौन सी पॉलिसी लोग नहीं देते, मतलब कौन से डिजास्टर के लिए? नहीं, वो तो पॉलिसी पे डिपेंड करता है, वो कंपनी नो पे मत डिपेंड करता है। नो मैम, मतलब कोई ऐसा है जो आप मतलब कोई बेचता ही नहीं, मतलब वो डिजास्टर है मगर कोई बेचना नहीं चाहता है वो वाली पॉलिसी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको सब आपका इंक्लूड करके मिल सकता है, सिर्फ प्रीमियम भरना पड़ता है उसके लिए एक्स्ट्रा। मतलब आप किसकी पॉलिसी निकाल सकते हैं इंश्योरेंस में? जो आपको मतलब चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलता है, होम इंश्योरेंस मिलता है, आपको कौन सी पॉलिसी खरीदनी वो आप पे डिपेंड करेगा ना। ओके मैम। हाँ, कौन सी पॉलिसी मतलब वो तो आप पे डिपेंड करता है ना, आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी है, और अगर जनरल में खरीदनी है तो क्या खरीदनी है, मेडिक्लेम या हेल्थ से रिलेटेड या होम से रिलेटेड, या फायर इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी है, मेराइन इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी, वो तो आप पे डिपेंड करता है ना बच्चा। ओके मैम। यस, ठीक है, ओके। और कुछ डाउट? नो मैम। या, ठीक है, चलो। सो आई थिंक आई कैन वाइंड अप।